इन दिनों दक्षिण भारत के राज्य खासतौर से तमिलनाडु में कई राजनीतिक दल काफी गुस्से में हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा सीटों के परिसीमन का मामला है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। संसद में दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इससे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी राजनीतिक ताकत पर असर पड़ेगा। स्टालिन का कहना है कि दक्षिण भारत की प्रगतिशील नीतियों के कारण दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या वृद्धि पर काबू करने में कामयाब हुए हैं और अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एमके स्टालिन ने इस परिसीमन को अन्यायपूर्ण प्रक्रिया बता रहा है। தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமை இன்றைக்கு 39 எம்பிக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால், அவர்களை வைத்துக்கொண்டே போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், அதையும் மீறி இன்றைக்கு இன்னும் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தால்தான் நாம் எண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்பட முடியும். ஆக அதையெல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தினால் மீண்டும் இந்த திருமண விழாவின் மூலமாக எல்லா கட்சி தலைவர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, வர முடியாதவர்களும் தயவு கூர்ந்து வர வேண்டும் வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன். உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள், முன்பெல்லாம் குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது இப்போ. ஏன்னா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் நமக்கு எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கள் அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் இப்போ யாரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் பெறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள். அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். Why will not? Because already the Prime Minister Mr. Modi, when he opened the new parliament, he said it's going to increase. It was like 2 years back. And in 2023, I think Mr. Amit Shah, he also spoke that it will definitely affect the South Indian states. But now they are, since our leader, Tamil Nadu Chief Minister, has raised up the issue, they are changing the stand. We want them to confirm it. Tamil Nadu represents around in 543 seats, we represent around 39. Which is around 7.2%. Our only request here, a demand here is, if they are going to raise the numbers in the north states of India, Tamil Nadu will also request, we also demand an increase in the numbers. आपको याद दिला दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, एक प्रो रेटा बेसिस पर ये पूरा चीज़ें की जाएंगी। तो उसको लेकर अभी कन्फ्यूजन बरकरार है। अनुराग वर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव साहब भी जुड़ रहे हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं वर्मा साहब। ये जो देखिए, जो उनका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट तो जायज़ है, क्योंकि अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 1976 में इमरजेंसी लगने के बाद से 2001 तक उस पर रोक लग गई थी। 2001 में भी सदर्न स्टेट्स का प्रेशर था कि आप अभी इसको परिसीमन को वैसे का वैसा ही रहने दें। तो विधानसभा की, लोकसभा की सीटों की जो बाउंड्रीज हैं वो बदली, लेकिन नंबर ऑफ सीटें नहीं बदली हैं। एक तो अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, और दूसरा ये स्टेट जो कह रहे हैं कि हम प्रगतिशील स्टेट हैं तो इसका खामियाजा हम क्यों भुगते, ये कम से कम उनकी जो परेशानी है वो तो जायज़ है। अंकित, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जो सबसे पहले समझने वाली चीज़ है कि जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, ना कि आपकी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन वो स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। वो किसी स्टालिन का या किसी अगर हम नॉर्थ की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का, या किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। तो उस चीज़ को सबसे पहले समझना होगा कि जितने लोग हैं उस रेशियो में ही रिप्रेजेंटेशन आइडियली होना चाहिए। नहीं, अगर वर्मा साहब वो आप जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकली समझ में आता है, लेकिन देश में अगर लगातार कोशिशें हो रही हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने की और कुछ राज्य उस पर अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका खामियाजा वो राजनीतिक तौर पे क्यों भुगते हैं? लेकिन ये हमने ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अभी तो ये एक्चुअली जो मेरा अपना मानना है, ये 26 में जो उनके विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी ये तैयारी है कि एंटी केंद्र की जो राजनीति है इनकी, उसको एक तरह से ये फ्लेयर अप करें, उसको बिल्टअप करें और एंटी सेंटर, एंटी
जो वहां भाषा की भी राजनीति अभी कुछ दिनों पहले हुई। तो इस तरह से जो फ्लेयर अप करने का जो माहौल बन रहा है वो इसके पीछे मेन कारण है, क्योंकि अभी कोई बेस नहीं है कि किस रेशियो पे 8.5 लाख पे होगा, 12 लाख पे होगा, 15 लाख पे होगा, 20 लाख पे होगा। अभी कोई बात ऐसी नहीं हुई है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात हो रही है। अंकुश श्रीवास्तव साहब, रेशो कुछ भी हो, उस रेशो के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो अगर थोड़ी सीटें बढ़ेंगी तो प्रोपोर्शनल चेंज जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आने वाला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उसमें भी प्रोपोर्शनल चेंज काफी बड़ा होने वाला है। और अगर कुछ सीटें बढ़ती भी हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स की, तो वो प्रोपोर्शनल चेंज बहुत कम है, उसको लेकर लामबंदी नजर आ रही है सदर्न स्टेट्स में। तो आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं ये 2026 में जब भी परिसीमन होगा, ये एक बड़ा मुद्दा, नेशनल बड़ा मुद्दा बनने की तौर पे देखा जा रहा है इसको? देखिए, ये नेशनल बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये सदर्न स्टेट का जरूर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये तय है कि जैसे कि वर्मा जी ने कहा है कि इस चुनाव से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, ये इसको समझना चाहिए। आप पहले ये समझ लीजिए, जो संविधान के अनुच्छेद 82 है, उसमें कहा गया प्रत्येक जनगणना के बाद जो है प्रत्येक राज्य की लोकसभा की सीटों को जनगणना परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया, इससे पहले एक अनुच्छेद है 81 ए में या का में कह लीजिए उसको, जिसमें ये कहा गया कि राज्यों की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 530 से ज्यादा नहीं की जा सकती। तो अब इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसी हिसाब से 530 होता है। तो पहले तो ये है कि अगर परिसीमन और परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाई जानी है तो ये इस पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा, इस पर बदलाव लाना पड़ेगा। उनका संकट जो है वो ये निश्चित रूप से है, अगर अमित शाह साहब ने ये कह दिया है कि हम उनकी सीटें कम नहीं होने देंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी जैसे कहा जा रहा था अभी 10 लाख हो या 20 लाख हो, 20 लाख पे भी होने पर उनकी केरल में 2 सीटें कम हो जाती है, तमिलनाडु में 3-4 सीटें कम हो जाती हैं। तो कम नहीं होने देंगे। मान लीजिए कि क्लॉज लगा करके 81A में कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कम ना होने से प्रोपोजिशन तो उनका हमेशा ही कम रहेगा। जो उनकी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में ताकत होती थी, आज भी देश में अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो ज्यादातर ये होता है कि वो, क्योंकि उस जो प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, बिहार से होकर निकलती है, और वो यहाँ के लोग ज्यादा तय करते हैं कि इसका। तो अब अगर 20 लाख भी हो जाएगा तो 126 सीटें बनेंगी। तो तय है कि 880 हो जाए सीटें, तब भी 126 जो है वो बड़ा होगा। तो क्या 20-22% वाले तय करने वाले लोग जो होंगे वो बहुत बड़ी बात वर्मा साहब, करेंगे। तो क्या यही परेशानी सामने है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी देखा जा रहा है कि उनकी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में एक डोमिनेंस है? उत्तर प्रदेश में अगर सीटें बढ़ती हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ ऐसा कम से कम माना जा रहा है कि बीजेपी को होगा। तो क्या इसी को लेकर चिंता है कि आपकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो और कम हो जाएगी अगर यहां पर इतनी सारी सीटें बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, देखिए यहां पे बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल कैपिटल कम हो जी। अंकित, ये जो साउथ की पॉलिटिक्स का हमेशा से एक अलग नेचर है, जो वो क्या वहाँ के रीजनल पार्टीज केंद्र के साथ बहुत स्मार्टली जो अपने नेगोशिएशंस करते हैं कि जब भी थोड़ी सी भी सीटें ऊपर नीचे होती हैं तो उसका नेगोशिएशन इनका बहुत स्मार्ट होता है, और उसका इनको फायदा कांग्रेस के शासनकाल में बहुत बढ़िया मिला हुआ है। इस बार थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है, तो अगर ये हाँ खूब मिला तो अगर आप इस बार जो नया सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, उसमें जो है इनका जो नेगोशिएशन पावर है, जो इनकी आर्म ट्विस्टिंग की जो क्षमता है वो कम हो रही है। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा अंकित, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने साउथ में अपनी रीच बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, लगातार जो है बीजेपी का संगठन, आरएसएस का संगठन, जो उनके स्वयंसेवक हैं, वो साउथ में अपनी रीच बढ़ाने में लगातार लगे हुए, जिसका भी ये डर है और उसको किसी ना किसी तरह से एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे अभी का परिसीमन की बात हो रही हो, चाहे इससे पहले की हो, जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो कहीं ना कहीं अपना कुछ एडवांटेज के हिसाब से परिसीमन करती है। ये कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है और ये अब होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी एडवांटेज रहती है जो सत्ता में है, जिस तरीके से बाउंड्रीज बदली जाएंगी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लेकिन क्या इस तरीके से जो 4-5 राज्यों की साउथ के जो परेशानी है, और उसमें ममता बनर्जी को भी जोड़ दिया जाए, उन्हें भी लगता है कि उनको इससे नुकसान हो सकता है,
और कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी इन राज्यों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की इस बार 99 में से करीब 53 सीटें तो अभी भी साउथ इंडियन से ही आ रही हैं। तो ये क्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दे के तौर पर 2026 में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो कुछ राज्यों के या उसके बाद होने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में, कितना बड़ा मुद्दा बनता है, ये एक चर्चा का विषय जरूर रहेगा। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, अभी फॉर्मूला तो आने दीजिए, फिर तय होगा कितना नफा नुकसान किसको होने वाला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने